السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو، جو یہ مدرسے کے بچوں کو لوگ اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں اپنے مردے بخشانے کے لیے، ختم پڑھانے کے لیے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جو ہیں میرا بیٹا محمد نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، اور اس حوالے سے میں آپ حضرات کو بتانا چاہوں گا۔ دیکھیں کہ غریب سے غریب تر آدمی بھی ہم نے بہت بڑا عرصہ مدارس میں پڑھا، پھر بہت بڑا عرصہ جو ہے نا پڑھاتے رہے ہیں، لیکن ان مدارس کا اندر کوئی بھی ایک ایسا بچہ نہیں آیا یا ہم نے نہیں دیکھا جس کے گھر میں کھانے کو نہ ہو، والدین غریب ہو، جنہوں نے اس کو اٹھا کے مدرسے میں چھوڑ دیا ہو کہ یہاں جس طرح جیسے کیسے نکلتا ہے نکلنے دو۔ ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں ہم نے جتنے مدارس میں بچے دیکھیں، طالب علم دیکھیں، اور ان کے والدین نے جو ہے اس غرض سے بھیجا کہ یہ قرآن کے حافظ بن جائیں گے، عالم بن جائیں گے، اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائیں گے، اور پھر یہ ہے کہ اسلام کے خادم بن جائیں گے، اور آگے جا کر اسلام کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ خدمات سر انجام دیں گے، کہیں امامت کے حوالے سے، قرآن سنانے کے حوالے سے، حدیث پڑھانے کے حوالے سے، قرآن کی تفسیر کے حوالے سے۔ تو جن والدین کو آخرت کا ذوق اور شوق ہوتا ہے، اور جو لوگ یعنی اخروی معاملات میں یعنی آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اپنے لیے نجات کا ذریعہ اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانا چاہتے ہیں، جن کا آخرت پر یقین ہے، وہی لوگ اپنے بچوں کو مدارس میں بھیجتے ہیں تاکہ ہمارے بچے جو ہیں نا وہ پڑھ کر آگے جو ہیں وہ عالم بن کر، اور قرآن پڑھنے والے بن کر، نماز پڑھنے والے بن کر، تہجد پڑھنے والے بن کر، علم اور عمل کے مرکز اور منبع بن کر، اسلام کے اعلیٰ خدمات سر انجام دے کر ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ میرا والد صاحب آخر میں جب فوت ہو رہے تھے تو کہنے لگا کہ مجھے ابھی اس مرنے پر کوئی افسوس نہیں ہے، کیونکہ جو ہے کیا نام ہے میرے کئی بچے حافظ بن گئے ہیں، اور آپ عالم بن گئے ہیں، اور آپ نے اتنے حافظ بنائے، عالم بنائے، اور پھر میرے گھر میں تقریباً بہت سارے اور بچے ہیں جو روزانہ صبح قرآن پڑھتے ہیں، اور وہاں مدرسے میں جو ہے نا دن رات قرآن پڑھا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں میرا تو آخرت بن گیا ہے، تو مجھے اس مرنے پر کوئی افسوس نہیں ہے۔ تو یقیناً یہ مدارس کا اندر جو طالب علم بھیجتے ہیں والدین، ان کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ یہ مرنے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، اور یہ پڑھ کے کچھ بن جائے۔ ابھی یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ آپ اپنے بچے کو سکول بھیجتے ہیں، یا ٹیوشن بھیجتے ہیں، یا کسی کالج یونیورسٹی میں بھیجتے ہیں، تو وہاں جو پرنسپل صاحب ہوتا ہے، اور کوئی آ کر اس کو کہیں کہ حضرت جو ہے نا ہمارے گھر میں جو ہے نا ہمارے جانور سنبھالنے کے لیے، یا ہمارے گھر میں گھر کے تھوڑا ہاتھ بٹانے کے لیے کوئی بھی نہیں ہے، تو آپ پلیز جو ہے کیا نام ہے کسی بچے کو بھیج دے تو ہمارے گھر کا تھوڑا سا ہیلپ کرے گا، تو اس پر ان کے والدین کو اجر ملے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ اور یا اسی طرح جو ہے نا ویسے بھی کوئی ٹیچر اپنے گھر کے کام کاج کے لیے، بیوی کے کپڑے دھلانے کے لیے، یا اس کے بازار سے سامان دلوانے کے لیے کسی بچے کو بھیجتا ہے، تو جب سکول میں والدین کو پتہ چلتا ہے، یا سکول میں والدین جاتے ہیں دیکھتے بچہ نہیں ہے، تو پوچھیں گے کہ بھائی ہمارا بچہ کدھر ہے، تو وہ کہے گا کہ نہیں، تھوڑا ثواب کمانے کے لیے میں نے گھر بھیجا ہے، اور وہ جو ہے نا تھوڑا سا میرے گھر کے ہیلپ کرانا تھا، کام کرانے تھے۔ تو حقیقت میں ان والدین کا اس ماسٹر صاحب کے بارے میں، یا کوئی بھی ایک ٹیچر ہے اس کے بارے میں بہت برے تاثرات ہوں گے، اور اس سے ان کے دل میں انتقام کا لہر دوڑے گا، وہ پیٹے گا کہ یار میں نے یہاں بچے کو پڑھانے کے لیے بھیجا ہے، یا یہ ہے کہ آپ کی بیوی کے جو ہے نا وہ کپڑے دھلانے کے لیے، یا گھر کا راشن منگانے کے لیے بھیجا ہے، میں نے تو اپنے سارے کام چھڑوا کر اس کو جو ہے کیا نام ہے پڑھانے کے لیے بھیجا ہے بیٹا۔ سمجھ میں آیا جی؟ تو اسی طرح جو ہے نا ابھی ایک سٹوڈنٹ ہے، اور وہ پورا سال اپنے والدین کو چھوڑ دیتا ہے، اور پردیسی کی زندگی کو کاٹتا ہے، اس کے خرچہ پانی والدین پیچھے سے جو ہے نا بیچتے ہیں، اور قرآن کے لیے، حدیث کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے
पूरा साल जो है वो घर से दूर रहता है, और इधर जो है ना हमारा मौलवी साहब और जो है क्या नाम है हमारा कारी साहब लोगों के मुर्दे बख्शाने के लिए यानी इस बच्चे के मुस्तकबिल को दाव पे लगा देता है, दाव पे लगाता है। हकीकत में अगर उनके वालिदैन को पता चल जाए कि मेरे बच्चे जो है ना दर दर ख़त्म पढ़ने के लिए लोगों को बख्शाने के लिए फिर रहे हैं और वहाँ कोई नहीं पढ़ रहा, तो यकीनन उनके वालिदैन के दिलों पर छुरियाँ चलेंगी, उनके वालिदैन के दिलों पर छुरियाँ चलेंगी। तो इसलिए जो है क्या नाम है कि अभी ये पूरा पाकिस्तान में ये एक तरीका बनाया हुआ है कि अब किसी की वालिदैन फौत हो जाए, किसी का तीसरी का कुल है तो जुमराती का कुल है तो बच्चे मंगाने हैं मदरसे से, और वो नहीं देखते कि मदरसे में यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, और उनके लिए भी ये हैं, वो जो ले जाने वाले हैं उनके दिल व दिमाग में भी ये नहीं है। वो समझते हैं कि सिर्फ बख्शाने के लिए इकट्ठे हुए लोग हैं और इनका कोई काम नहीं है सवाए ख़त्म पढ़ने के। और भाई उनका काम है, तुम उनके टाइम ज़ाया कर रहे हो, और अगर कोई हाफिज बच्चा है तो उसका मंजिल रह जाता है, उसका सबक रह जाता है, उसकी सबकी रह जाता है, और वो दिन उसका पानी में चला जाता है, वो कोई सबक उस्ताद को नहीं सुना सकता, तो उसका वो दिन आपने ज़ाया कर दिया। कोई और किताबों का तालिब इल्म है तो उसका भी वो एक दिन ज़ाया हो जाता है। तो गोया के आप भी खयानत कर रहे हैं और वो कारी साहब भी खयानत कर रहा है। बच्चे तो मजबूर हैं, समझ में आया जी, वो तो जहाँ कहेंगे चले जाएंगे और वो चले जाएंगे, समझ में आया जी। इसके अलावा जो लोग ये ख़त्म खानी पढ़ाते हैं और वो ऐसा करते हैं कि वो लगे भाई इतने कुरान पढ़ना है, और कुरान पढ़ना कोई आसान है, उसके लिए टाइम चाहिए होता है। हमें 10 कुरान चाहिए और बुलाए हुए 30 बच्चे, ये तो मिनटों में 5 मिनट में पारा पढ़ते हैं। आगे से कारी साहब ने कहा होता है कि भाई इतने 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 बस दरमियान में थोड़ा पढ़ लो, जब आएंगे बता देना कि 30 कुरान पूरे हो गए। यही ड्रामे चलते रहते हैं। फिर वो कुछ पैसे दे देते हैं, 5,000 10,000 और 100 रुपये बच्चों को दे देते हैं, और बाकी जो है ना कारी साहब अपने जेब में डाल देता है। तो कारी साहब थोड़े से पैसों के लिए, 2-4 मिठाइयों के लिए, एक वक्त के खाने के लिए, और जो है ना किसी के बच्चों के मुस्तकबिल के ऊपर दाव लगा देता है, और वो ले जाने वाले समझते हैं कि हमारी बख्शिश हो गई, तुम्हारी बख्शिश नहीं हो गई, तुमने किसी के टाइम ज़ाया कर दिया है, किसी के बच्चों के मुस्तकबिल ज़ाया कर दिया है, समझ में आया जी। तो इस हवाले से ये है कि ये जो ख़त्म पढ़ाते हैं बेटा जो है ना, ये बिल्कुल भी शरीयतन कुरान हदीस में भी इसकी कोई इजाज़त नहीं है। इस तरह जो है ना मुर्दे नहीं बख्शाए जाते हैं, समझ में आया जी। उसके लिए खुद रोना पड़ता है, समझ में आया, खुद सदका जारिया बनना पड़ता है, खुद का नमाज न पढ़े और लोगों के बच्चों के मुस्तकबिल ज़ाया कर दे। इसके हवाले से एक लतीफ़ा भी है। अब जाहिर बात है कि एक मरतबा मैंने 70 के करीब बच्चे जो है ना वो कश्मीर में एक जगह पढ़ाता था, मैं वहाँ ले आया। तो जब इलाके के लोगों को पता चल गया कि यहाँ मदरसे में बच्चे आ गए, अभी इन्होंने कपड़े अपने बदले नहीं है और मुख्तलिफ किस्म के पुराने कपड़े लगे हैं, गाँव देहात वाले, अभी मदरसे के माहौल में आया नहीं है, अलिफ बा पढ़ा नहीं है, फ़ौरन जो है ना लोग पहुँच गए कि ख़त्म के लिए बच्चे भेज दो। तो मौलवी साहब था, उसने कहा ये जाकर मौलवी साहब से बात करें और ले जाएं। तो वो आकर मुझे कहने लगे कि बच्चे ले जाना है। मैंने कहा क्यों? बख्शाना है, ख़त्म पढ़ाना है। मैंने कहा इनको तो कख नहीं आता, अलिफ नहीं आता, कैसे बख्शाओगे, कैसे ले जाओगे? कि नहीं बस हमने खाना पूरा करना है, वहाँ ले जाना है। मैंने कहा नहीं भाई, इस तरह तो मैं बच्चे नहीं भेज सकता, ये बच्चे मैंने पढ़ाने के लिए लाया है, यहाँ बख्शाने के लिए लेके नहीं आया, समझ में आया जी। ये बच्चे तो पढ़ भी नहीं सकते, अगर पढ़ भी ले तो ये मैंने कहा बख्शाने के लिए तो नहीं लाया है, यहाँ पढ़ाने के लिए लेकर आए। आप कौन होते हैं? बड़े मौलवी साहब ने कहा है। मैंने कहा बड़े मौलवी साहब को क्या पता है? बड़े मौलवी साहब ने इधर इनके वालिदैन को मुंह नहीं दिखाना है, वो मैंने दिखाना है बेटा मुंह इनके वालिदैन को, तो मैं नहीं भेजता। इस बात पर 4-5 साल हमारी लड़ाइयाँ होती रही। यही बातें बांधने बनकर वो जगह ही मैंने छोड़ दिया, समझ में आया जी। और फिर यहाँ जब मैं आया, मेरे यहाँ 12 साल हो गए और पहले दिन आ गए बच्चे भेजना है। क्यों भाई बच्चे क्यों भेजना है? आइए कोई जो है ना भैंसे चराने के लिए इधर लेकर आया क्या? नहीं, वो हमारे मुर्दे बख्शाना है। मैंने कहा ये मुर्दे बख्शाने के लिए नहीं लाया, ये पढ़ाने के लिए लाया है, समझ में आया जी। इनके वालिदैन को भी जवाब देना, अल्लाह को जवाब देना है, और इन बच्चों को मैंने कुरान के हाफिज बनाना है। लेकिन जब इस तरह की घूमेंगे फिरेंगे, अब मिसाल के तौर पर बेटा आज जो है ना अभी ये बच्चे ख़त्म के लिए जाते हैं, हाँ, एक तो इन बच्चों में बहुत सारे ऐसे होते हैं जिन्होंने अभी स्टार्टिंग किया होता है, पढ़े नहीं होते हैं, कुछ के जो है ना पढ़ रहे होते हैं, 5-10 सिपारे हुए होते हैं, उनका जो है ना सबक ज़ाया हो रहा होता है। तो अब ये है कि वो जो मदरसे वाले जो ख़त्मों के लिए भेजते हैं, उस पर एक फर्जी कहानी भी बनाया है, लेकिन इसको हकीकत भी समझ लो कि वो जो हैं
अब जाहिर बात है कि आप बच्चों को भेजते हैं किसी घर की, आप लेके जाते हैं, आपके घर से वापस आ जाते तो एक अगला एक और आया होता है, वो लेके जाता है तो अगला एक और आया होता है, वो लेके जाता है तो अगला एक और आया होता है, वो ले जाता है। अब उनके पास तो पढ़ने का टाइम ही नहीं है, उनको तो अलिफ पा का भी नहीं पता चला होता है। समझ में आया जी। तो इस हवाले से एक है कि एक सांप की कोई वालिदा फौत हो गई, तो वो सांप मदरसे में गया, तो उनको कहा कि ख़त्म के लिए बच्चे पे, तो वो तो पहले से तैयार बैठे हुए थे, तो चलो भाई अब मज़े हो गए जो है ना, सांप के घर जाना है और वहाँ से जो है ना कुछ खाएंगे भी और पैसे भी मिल जाएंगे और उनको बख्शाएंगे भी। अब उनको तो ख़त्मों में घूमने वाले थे, आता जाता कुछ नहीं था, तो उधर गए, एक कमरे में बैठाया कोने में बच्चों को, तो कारी साहब से कहा, कारी साहब अभी कौन सी आवाज़ लगानी है? तो कारी साहब ने कहा कि सब एक ही आवाज़ में कहो, आता जाता कुछ नहीं, आता जाता कुछ नहीं, आता जाता कुछ नहीं, एक ही आवाज़ में, आगे पीछे नहीं करना, ताकि ये समझे कुरान पढ़ रहे हैं। दूसरे मदरसे वालों को लेकर आया, वो जो ख़त्म वाले मदरसे हैं, पढ़ने वाले नहीं, उधर एक और जगह पर बिठाया, तो वो भी तो ख़त्म पर घूमने वाले थे, पढ़ने वाले थे नहीं। तो उन्होंने कहा कि उस्ताद जी क्या पढ़ना है? उसने कहा वो देखो क्या पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा आता जाता कुछ नहीं। तो अगलों को कहा कि तुम कहो जैसे तुम वैसे हम, जैसे तुम वैसे हम, जैसे तुम ऐसे हम, एक ही आवाज़ में रटा लगाना ताकि वो समझे कुरान पढ़ रहे हैं। तीसरा मदरसे वालों को लाएगा, वो भी ख़त्म खोर मदरसे थे, उनको बैठा के जो है यानी उन्होंने कहा कि हम क्या पढ़ें? उन्होंने कहा देखो ये दोनों किस्म के क्या पढ़ते हैं, एक कहता आता जाता कुछ नहीं, दूसरा कहता जैसे तुम वैसे हम, और तीसरों ने कहा कि जो है क्या नाम है, ये हेरा फेरी कब तक, ये हेरा फेरी कब तक, ये हेरा फेरी कब तक। वो सांप कोई बड़ा होशियार था, उसने थोड़ा कान लगाया बेटा, उसने कान लगाया कि कुरान की आवाज़ तो नहीं आ रही, ये कोई और बोल रहे हैं। तो ये ग्रुप कह रहा आता जाता कुछ नहीं, दूसरा कह रहा है कि जैसे तुम वैसे हम, तीसरा कह रहा है कि हेरा फेरी कब तक। समझ में? तो पीछे से उसने एक डांग उठाई, ओ बगैर तो ये क्या पढ़ रहा हो, ये कुरान थोड़ी है। मैंने कहा साहब सब्र करो, सब्र करो साहब, मारना नहीं, सब्र करो। हाँ सब्र हो गया, बताओ। कहते तुम्हारा भी कसूर है, हमारा भी कसूर है, इन बच्चों का कसूर नहीं, इनको ना मारना, क्योंकि तुम हमें पढ़ना देते नहीं हो, और हम तुम्हारे 4 पैसों की वजह से जो है ना इनको लेकर आ जाते हैं, तो पढ़ने का तो इनके पास टाइम ही नहीं मिलता, तो ये क्या पढ़ेंगे? आखिर यही तो कहेंगे जो ये कह रहे हैं, हम इनको पास पढ़ने का टाइम ही नहीं है। तो बेटा जो है ना, जो मदारिस जो अपनी एक जिम्मेदारी निभाकर पढ़ाते हैं ना, वो जो है क्या नाम है, इस तरह की किसी मदरसे में किसी की बख्शिश के लिए नहीं भेजते, और न भेजना चाहिए, जायज़ भी नहीं है कुरान हदीस के हवाले से। हाँ, इस तरह सहाबा ने किसी की ख़त्म कुरानी नहीं की है। सहाबा ने, नबी अलैहिस्सलाम ने इसी तरह किसी के मुर्दों को ऊपर बैठाकर कुरान नहीं पढ़ाया है, पूरी हदीस में कहीं नहीं मिलता, और ये बख्शाने के लिए लेके जाते हैं, ये कोई कुरान हदीस में नहीं है। हाँ, ऐसा सवाब है, ऐसा सवाब का तरीके हैं। अब अगर किसी मदरसे के बच्चे सुबह से शाम तक अपना जो मंजिल सबक याद करते हैं क्लास ही में, तो अगर उनको कोई खिदमत कर लें, न भी कर लें, वहाँ आकर दुआ करवा दे कि प्लीज़ मेरे वालिदैन के लिए साल सवाब कर दे, जबकि ये तरीका भी नहीं है, लेकिन चलो एक गुंजाइश निकाल देते हैं। समझ में? या ये है कि खुद कुरान पढ़े, खुद दुआ करे। हाँ, किसी के बच्चों को किराए पे लाकर इस तरह बख्शिश नहीं कराई जाती। जज़ाकल्लाह व अहसन बारकल्लाह।